Hello friends, let us continue our history optional classes, and today we are going to continue the topic in world history, that is socialism and Marxism. So in the previous session हमने discuss किया था about socialism and Marxism. Basically I tried to explain you the background of socialism, about the early socialist thinkers, right? What were the reasons, what were the factors behind the rise of socialism. In today's session, we will enter into Marxism. So make sure that you watch the previous session. So in the previous session, I have explained you, पूरी जर्नी मैंने आप लोगों को समझाई थी, right? That what happened during the 18th century, mid 18th century onwards, then to the start of the 19th century, then to the mid of the 19th century, then to the start of the 20th century, right? So इस timeline पर हम आगे बढ़ रहे हैं. So I hope if you have watched the previous session, you have all the important concepts with you. If not, make sure that you go through the previous session. Previous session was the L30th session in this world history series. All right. So we have discussed what is socialism in the previous session. We have discussed the factors inspiring socialist ideology. So I will not be, मैं फिर से ये points जो है वो repeat नहीं करूँगा. Make sure कि आप revise ज़रूर कर लें. All right. Then the difference between liberalism and early socialism. How liberalism gave rise to industrial revolution and how socialism is a reaction to both industrial revolution and liberalism, right? So we have discussed that in details in the previous session. Next is we discussed about the early socialist thinkers. So from Britain we have Robert Owen, from France we have Saint-Simon या Saint-Simon, then Charles Fourier, right? And after that we tried to establish some of the contributions of early socialists and their limitations, so their significance, their importance and their limitations. So for किसी भी डायरेक्शन से अगर सोशलिज्म पर क्वेश्चन आता है, so you are able to answer that now, ठीक है? Then we also discussed a few important other, like Louis Blanc के बारे में हमने डिस्कस किया, that how he was a realist French thinker, how he was more of a he had more of a pragmatic approach, right? After this we started with Marxism and Karl Marx. So यहाँ से आज हमें resume करना है. Although I have explained, थोड़ा सा मैंने आपको Marxism समझाया था, but let us go through that again, right? Now mind it, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, ठीक है? हम PSIR या सोशियोलॉजी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. सो मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा हिस्ट्री ऑप्शनल में जिस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं. आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन दैट एस्पेक्ट. क्वेश्चंस सच एज कि मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई यूरोप में, क्या उस पर इम्पैक्ट रहा लिबरलिज्म का या फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सच क्वेश्चंस. या इस तरह के क्वेश्चंस की जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई यूरोप में, क्या उसका लास्टिंग इम्पैक्ट रहा ऑन यूरोप, वेदर इट वाज, हाउ फार इट वाज सक्सेसफुल. क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम करें मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का, हाउ फार इट वाज सक्सेसफुल इन यूरोप, वेदर इट वाज अ फेलियर और अ सक्सेस. वी नीड टू आंसर सच क्वेश्चंस. ऑल्दो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली मार्क्सिज्म समझाने की किया, मार्क्स की थोड़ी आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा. लाइक इन द प्रीवियस सेशन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू the concepts of socialism. In this session I'll try to explain communism और Marxism में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट? बट ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करने में जो सवाल यूपीएससी ने हिस्ट्री ऑप्शनल में या जीएस में भी फॉर दैट मैटर पूछे हैं, राइट? जीएस 1 में. सो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो जुड़ते हुए या हिस्टोरिकल जो हमारा पूरा हम प्रोसेस समझते आ रहे हैं, जो चेंजेस को समझते आ रहे हैं, हमारी इस टाइमलाइन में कहाँ पर सेट हो रही है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस सेशन. सो आप कंफर्टेबल हैं मेरी अभी तक जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है प्रोवाइड करें, कंफर्टेबली आपको वो समझ आए. बुक रीडिंग जो मैंने सजेस्ट करी है, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट ऑल्सो, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद मार्क्सिज्म. So we will begin with that Marx was the first to provide a scientific base to socialism. Up till now socialism के लिए एक बहुत idealistic early socialist thinkers ने एक यूटोपियन मॉडल जो है वो क्रिएट किया था. इनफैक्ट मार्क्सिस्ट या मार्क्स के फॉलोअर्स ने ही अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स
के द्वारा दी गई सोशलिस्ट जो थ्योरी थी उसे एक यूटोपियन सोशलिज्म कहा, राइट। बट मार्क्स जो है वो एक साइंटिफिक बेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं सोशलिज्म के लिए। फॉर दैट फर्स्ट ही ट्राई टू एक्सप्लेन कि प्रॉब्लम क्या है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर कि मार्क्स की जो भी पूरी आइडियोलॉजी है ना वो भी डेवलप हुई है विद हिज एज। जैसे जैसे उनके लाइफ के एक्सपीरियंस आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे उनको लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता रहा, वैसे वैसे उनकी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म या जो अपनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने डेवलप करी, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी ग्रेजुअली जो है वो डेवलप हुई। लाइक इनिशियली ही वाज अ फॉलोअर ऑफ सेंट साइमन, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट साइमन, राइट। देन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीगल आल्सो, देन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड फ्रेडरिक इंग्लिश, राइट। देन इवेंचुअली धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो है वो आइडियोलॉजी को डेवलप किया, बुक्स में पब्लिश किया, लाइक दास कापिताल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेकिन अगर हम मार्क्स की लाइफ में जाएंगे तो हम पाएंगे कि भैया कुछ समय बाद, इनफैक्ट आफ्टर 1848 जो रेवोल्यूशंस हुई थ्रू आउट यूरोप में, और उन रेवोल्यूशंस के चलते मार्क्सिज्म या जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई। आफ्टर दैट मार्क्स जो है वो लंदन शिफ्ट कर गए और रिजर्व कर लिया उन्होंने अपने आप को, एंड देन ही वर्कड मोर इन अ मैनर ऑफ क्रिटिकिंग जो है वो उन्होंने फिर ज़्यादा करी ऑफ कंटेम्पररी आइडियोलॉजीज एंड दी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सच। बट हमें मार्क्स की लाइफ में एंटर नहीं करना है, राइट। ऑल्दो वी मस्ट हैव अ लिटिल टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। अगर आप बुक रीडिंग करेंगे, एज आई हैव सजेस्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम द अदर बुक्स दैट आई हैव मेंशन्ड, मेक श्योर कि आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। वहाँ से आपको मार्क्स की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड्स मिल जाएंगे जो थोड़े बहुत आपको आंसर में कोट करने में मदद करेंगे। लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा फॉर आंसर राइटिंग। Alright, so now let us start. So Marx provided a scientific base to socialism. अब हम इसे साइंटिफिक बेस क्यों कह रहे हैं, थोड़ी देर में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दी डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म। बट डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म को समझने से पहले हम डायलैक्टिकल आइडियलिज्म को समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे ये डायलैक्टिक्स है क्या, राइट। फ्रॉम हियर एंड नॉट जस्ट दिस, जो हिस्टोरिकल बेसिस बताया मार्क्स ने मटीरियलिज्म का, from here he derived the scientific base to socialism, and he provided a solution that he thought would be the practical solution to this problem of the relationship between labor and capital, right. So now you look at these, you read these statements with me, right, और इन statements के माध्यम से धीरे धीरे मैं आपको सारा concept आज clear कर दूंगा, all right. Now, so he was first to, so this is just an introduction, right. So he was first to provide a scientific base to socialism. He formed the League of Just in 1841 in association with his friend Engels. Later he changed its name to Communist League. So these are few of the factoids that you can quote here and there, and in variety of examinations such questions are asked, right, especially if you are going for UGC NET and such examinations. Now he published, and especially state level examinations, he published his famous Communist Manifesto in 1847-48. In this work, in this manifesto, he made a direct appeal to the workers of the world to unite. So why did he do it? क्यों मार्क्स ने कहा कि सभी वर्कर्स जो हैं वो जुड़ जाएं आपस में, right? So for that, first we need to understand few of his early theories. कहना क्या चाह रहे थे, किस तरह मार्क्स ने एक्सप्लेन किया द प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग मार्क्स एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एलियनेशन, और रादर जो पहली चीज हम आज के सेशन में पढ़ेंगे वो है कि भैया प्रॉब्लम एक बार समझ लेते हैं कि वर्किंग क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या थी. सो आई होप यू गाइज हैव द प्रॉपर बैकग्राउंड व्हाट हैपेंड in the first phase of the industrial revolution in Britain, right, yani ki from the mid of the 18th century to the mid of the 19th century, right, from the mid of the 18th century to the mid of the 19th century, right, rather specifically हमने सनों years wise देखा तो from 1760 to let's say 1840s तक. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो लिबरल आइडियोलॉजी रखने वाले जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है वो क्या चाह रहे थे, दे वांटेड कि भैया स्टेट का इंटरफेरेंस
मार्केट में कम से कम हो, दे वर एडवोकेटिंग फॉर लेजर फेयर, राइट। स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम चाह रहे थे। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि कैपिटलिस्ट वर नाउ फ्री टू एक्सप्लॉइट एज मच एज लेबर फ्रॉम द प्रोलेटरेट एज पॉसिबल। सो प्रोलेटरेट या एक इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का जो है वो इवेंचुअल डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देन द सेकेंड फेज, व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिट जो है वो मेनलैंड यूरोप में होता है या कॉन्टिनेंटल यूरोप में होता है, राइट। So I hope I have explained this concept enough in the previous session, or do I have to again? I don't think कि फिर से मैं वही सारी कहानी आपको समझाऊं तो टाइम वेस्ट करूं, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो जस्ट मैं आपको फिर से एक बिल्कुल ब्रीफ सा रिकैप दे देता हूं। सो दिस हैपेंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज इन फुल स्विंग, राइट। 20th सेंचुरी है स्टार्ट जब हुई, तो फर्स्ट फेज जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इट वाज एट फुल स्विंग इन ब्रिटेन एटलीस्ट, राइट। दैट रिजल्टेड इनटू व्हाट? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, राइट। बहुत बुरे लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि इन सम इंडस्ट्रियल सिटीज in England the life expectancy of the workers was around 15 to 17 years. So इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल था वर्किंग क्लास का और वर्कर्स का, राइट। देन नेक्स्ट इज, अब दिस इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड द कैपिटलिस्ट. The capitalists want to make as much profit as possible. So how will they be able to do this? By exploiting the labor as much as possible. उनको 14-14, 16-16 घंटे जो है वो काम करवाया जाए, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल भी वेज ना दिया जाए उन्हें, राइट। उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाए और बहुत ही लो और पुअर क्वालिटी कंडीशंस में उनसे काम कराया जाए। रहने के लिए उनको कोई सुविधा ना दी जाए, अच्छी सुविधा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन वाज एक्सक्लूडिंग फ्यू पार्ट्स ऑफ लंदन, रेस्ट ऑफ द लंदन वाज काइंड ऑफ अ स्लम, स्पेशली द इन एंड अराउंड द इंडस्ट्रियल एरिया, राइट। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, इसको समझाने के लिए मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एलियनेशन। मार्क्स ने कहा कि भैया ये जो वर्कर्स हैं, let us go through these statements, although in the previous session I have explained this, but let us again go through these statements. So according to Marx, rationalism is not the main difference between human beings and animals, but the most important factor which differentiates one from the other is the capacity to enjoy the fruits of his labor. His here being a gender neutral term, right? Because at that time फैक्ट्रीज में सभी काम कर रहे थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सभी, राइट। जो काम कर सकता था उससे फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था। आप कहेंगे सर ऑल्टरनेटिव नहीं था उनके पास। ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं था उनके पास। ऑल्टरनेटिव था डेथ, ऑल्टरनेटिव था बेगिंग, ऑल्टरनेटिव था क्राइम, राइट। ऑल्दो दिस वाज अ क्राइम टू, राइट, कि इस तरह एक्सप्लॉइट करना लेबर्स को, दिस वाज आल्सो अ क्राइम। खैर उसको थोड़ी देर में समझेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे, ठीक है। नाउ अब मार्क्स क्या कह रहे हैं? मार्क्स ये कह रहे हैं कि भैया ये जो जानवर हैं और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। ऑल्दो वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर हम, लेकिन फिर कुछ लोग आगे आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर नहीं, वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। नेवरदलेस वी आर एनिमल्स। अगर हमें जान है तो हम एनिमल्स हैं, ठीक है। वी आर सोशल एनिमल्स। देयर आर अदर एनिमल्स टू जो कि सोशल है, लाइक डॉग्स आर सोशल एनिमल्स, monkeys are social animals, right? There are a lot of different, like lions are social animals. अकेले रहने वाले जानवर तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन सोशल मतलब सोसाइटीज बनाकर रहने वाले जानवर भी बहुत सारे हैं. सो वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, बट वी हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ आवर इंक्रीज्ड क्रेनियल कैपेसिटी, और जो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर्स में जो बढ़ गया हमारा दिमाग का साइज, बाइपेडलिज्म जो डेवलप हो गया, हाथ जो हमारे फ्री हो गए, ये जो हमारे अपोजेबल थम्ब्स हैं, इसके चलते पिछले कुछ लाखों सालों से हमने जो है वो अपने आप को
बाकी स्पीशीज से ऊपर कर लिया। पहले हम इस पैकिंग ऑर्डर में ऑफ प्रेडेटर्स की जो पैकिंग ऑर्डर है उसमें बहुत नीचे थे। धीरे 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 करके हम एपेक्स प्रेडेटर्स की लाइंस में आए, राइट। बट स्टिल वी कैन से दैट हम जो है वो जानवरों से अलग हैं, बिकॉज लेट्स से वी कैन कवर आवरसेल्व्स, वी कैन थिंक। सो दिस आवर कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, आवर कैपेसिटी ऑफ बीइंग अवेयर, right, is something that differentiates us from animals. Otherwise we have those prehistoric instincts, we still have those prehistoric instincts. आज भी अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप तुरंत उस प्रीहिस्टोरिक इंस्टिंक्ट में चले जाते हैं, फाइट और फ्लाइट, राइट। सो मार्क्स क्या कहते हैं ऐसे में कि भैया हम जानवरों से अलग इसलिए नहीं है कि हम रैशनली सोच सकते हैं, हम इसलिए अलग हैं जानवरों से बिकॉज वी हैव द कैपेसिटी टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर लेबर, राइट। वी कैन थिंक ऑफ, we have the capacity of abstraction, we can think of new ideas, and on the basis of those new ideas we can create something new out of the resources that are available in our environment, and we can use that's something new that we have created to our benefit. Like we have developed tools over the lakhs of years of our evolution, right. टूल्स से कहानी जो है वो शुरू करते हुए आप जो है वो प्रेजेंट टाइम तक आ सकते हैं। सो एवरीथिंग वाज एन आइडिया। नाउ राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडिया बिकॉज इनिशियली मार्क्स वाज आल्सो स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ आइडिया। मार्क्स जो है वो आइडिया से स्विच होकर मटेरियल की बात करने लगेगा, बट इनिशियली मार्क्स भी आइडिया के टर्म्स में ही बोल रहा था बिकॉज ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, इनिशियली ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हेगल। Hegel was idealistic, he used to speak in terms of ideas. Hegel was influenced by Aristotle was influenced by Plato, right. So Marx says that we have that ability of abstraction, right, or Marx says that we have the capacity to enjoy the fruits of our labor, and with that capacity हमारा पूरा बायोकेमिस्ट्री, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है, राइट। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, जब हम कुछ काम करते हैं अपने लिए, या हम टूल बनाते हैं, हम हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, इवेंचुअली हमने शुरू में क्या किया, हंटिंग, गैदरिंग, फॉरेजिंग, स्कैवेंजिंग, राइट। इवेंचुअली वी डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमने थोड़ा कल्टीवेशन करना शुरू किया, देन हमने एग्रीकल्चर किया, फिर धीरे धीरे हमने टूल्स को सोफिस्टिकेट किया अपने, राइट, और हमने अदर मीन्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करी, हमने करेंसी को डेवलप किया। सो the point is, whatever we have been doing for the past, let's say 200,000 years of Homo sapiens presence on this earth, जो भी हम कर रहे हैं ना, मेजरली उसका फ्रूट जो है वो हम ही भोग रहे हैं। स्पेशली जो हम आर्ट कर पा रहे हैं, जो हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, जो हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम गा पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, उसका फ्रूट हमें मिल रहा है। जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फ्रूट लार्जली जो है वो प्रोड्यूसर ने ही इंजॉय किया है, राइट। फिर आप कहेंगे कि सर देयर वाज स्लेव्स आल्सो, राइट, ऑब्वियसली देयर वर स्लेव्स आल्सो, ठीक है। चलो वो जो स्लेव्स एंड मास्टर वाला जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी देर में समझाता हूं, राइट। दैट इज ऑल्सो अननेचुरल, क्योंकि मार्क्स ने उसको भी अननेचुरल कहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अननेचुरल, ठीक है। नेचुरल इज दिस, देखिए ना यार, पिछले 10,000 सालों के आसपास तो हमने सोसाइटीज को डेवलप किया है, राइट। उससे पहले कई लाखों सालों तक तो हमारा एक प्री हिस्टोरिक माइंड ही रहा है ना, प्री हिस्टोरिक एक कम्युनिटीज में ही हम रहे हैं, बैंड सोसाइटीज में हम रहे हैं, हमने रिसोर्सेज को जिस तरह यूज किया है, थोड़ी देर में समझेंगे रिसोर्सेज को किस तरह यूज किया हमने प्री हिस्टोरिक सोसाइटी में। ऑल्दो यू गाइज आर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट एंड यू हैव गॉन थ्रू द इनिशियल सेशंस जहां पर मैंने आपको प्री हिस्ट्री एक्सप्लेन किया था, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू, जो मैं कहना चाह रहा हूं इस समय, राइट। So Marx says that we are able to enjoy the fruits of our own labor. That is our natural tendency. But then comes the master-slave relationship. Then comes the feudal lord-serf relationship. Then comes the capitalist and the labor or capitalist and the proletariat relationship. जहाँ पर proletariat या एक industrial worker दिन के 12-16 घंटे काम कर रहा है, right? प्रोड्यूस कर रहा है कुछ
कोई भी चीज बना रहा है, एक लेट्स से एक असेंबली लाइन है, राइट, उसमें एक लेट्स से कोई क्लोथिंग आर्टिकल बन रहा है, लेट्स से जैकेट बन रही है, राइट, तो एक वर्कर जो है वो उसको स्टिच कर रहा है, दूसरा वर्कर उसमें बटन्स लगा रहा है, तीसरा वर्कर हो सकता है उसमें जिपर लगा रहा है, चौथा वर्कर हो सकता है उसमें लाइनिंग लगा रहा है, और एक बार अगर किसी वर्कर ने उस पर काम कर दिया और वो प्रोडक्ट उनके आगे से चला गया, ठीक है, सो एलियनेट हो गए वो अपनी क्रिएशन से। इससे क्या मैसेज जा रहा है हमारी इस बायोकेमिस्ट्री को, जो लाखों सालों का एवोल्यूशन है, राइट, इवेंचुअली वी आर एलियनेटिंग फ्रॉम आवर सेल्फ, बिकॉज हमारा जो सेल्फ है, it is that capacity what makes us different from other animals. It is our capacity to enjoy the fruits of our labor, right? So when a human being works, he gets creative joy provided the benefit of his work accrues to him, right? creative joy मिलता है अगर खुद को उस वर्क का जो है वो बेनिफिट मिले, तो एक क्रिएटिव जॉय मिलता है, डोपामीन वगैरह रिलीज होता है, राइट? But if the profit is misappropriated by some other person and the worker is deprived from the profit, he develops a sense of alienation from his true self, right? And that is also observable in other animals जो कि societies बनाकर रहते हैं, जैसे हम monkeys की बात करें या chimps की बात करें, right? उनकी society में भी जो higher hierarchy वाले जो monkeys हैं, वो hierarchy में lower level पर जो monkeys हैं उनसे सामान छीन लेते हैं, उनसे खाने की चीजें छीन लेते हैं, right? So that it's वे conclusive studies नहीं है, but perhaps उन्हें भी एक sense of alienation feel होता होगा। तो वही एक इंडस्ट्रियल, मार्क्स कहना चाह रहे हैं, वही एक इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ हो रहा है, वो एक सेंस ऑफ एलियनेशन फील कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनसे उनका बनाया हुआ सामान छीन लिया, उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, जस्ट उनको जिंदा रखा जा रहा है, और वो भी बहुत ही बुरी कंडीशंस में जिंदा रखा जा रहा है, जो कि एविडेंट है इन द डिक्लाइनिंग average lifespan of that time of the industrial workers, right? So in this way a sense of alienation among workers is a common feature in an industrial society. So this sense of alienation जो है वो slaves ने भी feel किया, this sense of alienation जो है वो serfs ने भी feel किया, right? Now in the industrial time मार्क्स कह रहे हैं कि this sense of alienation जो है वो अब industrial workers feel कर रहे हैं. So this was the problem of the relationship between labor and capital, right? कि उनका सेल्फ ही उनसे छीन लिया गया है, राइट? कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर को एक इंसान नहीं समझ रहे, बिकॉज सोशलिज्म जो है वो क्वालिटी की बात करता है, राइट? सो यहां पर, बट इन कैपिटलिज्म मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट एंड होल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर को इंसान ना समझकर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ रहे हैं कि भैया उनसे सिर्फ प्रोडक्शन, अब मैंने यहाँ इंसान को या लेबर को मोड ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहा थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उनसे जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एक मीन समझा जा रहा है कि भैया एक जीरो सम गेम बना लिया जा रहा है कि आपके पास जो लेबर है हम आपसे पूरा वो लेबर छीन लेंगे, राइट? बदले में आपको एक बहुत ड्विंडल्ड लाइफ मिलेगी, वो भी इसलिए वो ड्विंडल्ड लाइफ दी जा रही है, राइट, ताकि वो मशीन्स रनिंग रहे उनकी, राइट? सो बॉटम लाइन, बिल्कुल बॉटम लाइन का ख्याल था अपनी, उन्हें वेलफेयर का कोई ख्याल नहीं था। स्टेट जो है वो दूर दूर तक वेलफेयर का काम नहीं कर रही थी इनिशियली, राइट? सो मार्क्स चोज वर्कर्स एज अ होमोजेनियस क्लास एंड नॉट पेजेंट्स बिकॉज पेजेंट्स वर बाउंड टू प्रॉपर्टी। सो मार्क्स ने जो पूरा एक्सप्लेन किया है कि भैया सेल्फ एलियनेट हो गए हैं, तो मार्क्स ने कहा है कि इसके लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। इनफैक्ट थ्रू आउट द मार्क्सिस्ट जो भी हम आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, इट इज मोर सेंटर्ड टू फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। पीजेंट्स के लिए जो है वो पीजेंट्स को सेंटर में रखकर नहीं डेवलप की गई है थ्योरी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सेंटर में रखकर डेवलप की गई। नाउ ही आल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोलेटरेट्स बनाना, यानी कि प्रोलेटरेनाइजेशन। सो टंग ट्विस्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं मुझे, यू गाइज नो दैट। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज मार्क्स जो है वो कह रहा है कि भैया प्रोलेटरेट्स बनाए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट समथिंग जो कि नेचर है या कुदरती चीज नहीं है, बनाया जा रहा है। मार्क्स गिव्स सम सॉल्यूशंस टू द कंडीशन ऑफ सेल्फ एलियनेशन, राइट? अब मार्क्स ने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया?
that we need to, the workers, they need to develop a class consciousness. They need to understand as a class, as a homogeneous class, that they are all getting deprived of their natural rights, right? And they need to make a stand for them. Now, according to him, if an individual worker links his individual interest to the interest of his class, a class consciousness would develop, and the individual worker would come out from the condition of self alienation. So basically, united we stand, divided we fall वाला फंडा जो है वो मार्क्स ने यहाँ पर एक होमोजीनियस वर्किंग क्लास को दिया, राइट? कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ो, रादर जो आपकी क्लास है आइडेंटिफाई करो कि एज अ क्लास आपके इंटरेस्ट क्या है, और उसके साथ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अलाइन अगर आप कर लेते हैं, सो एज अ क्लास आप डेवलप कर सकेंगे. और उसके लिए क्या पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया मार्क्स ने, थोड़ी देर में उसे भी समझेंगे. ठीक है? सो दिस वाज द alienation concept. Now Marx interpreted the changes, read this statement, Marx interpreted the changes in the European society in the following manner. Now अब चाहे वो एरिस्टोटल की बात करें हम, या प्लाटो की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या मार्क्स की बात करें, कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्या चलता आया है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, राइट? सो वी आर हियर डिस्कसिंग व्हाट मार्क्स. तो मार्क्स ने कहा कि भैया जो यूरोपियन सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो पला बड़ा रहा, जिस सोसाइटी को उसने फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व किया, राइट, प्राइमरी सोर्स था उसका ऑफ नॉलेज ऑफ दैट सोसाइटी, उस सोसाइटी में रहकर उसने क्या ऑब्जर्व किया, दैट व्हाट, क्या जो है वो चलता आया है अभी तक यूरोप में. So he said that initially, so Marx defined the process of change, right? History is nothing but a process of change. हमने ये initial sessions में ही समझ लिया था. A process of change in the context of class conflict, and in this process of change there is a class conflict. That means throughout history there is a class conflict, right? So he divided European society in the following segment. First is primary communism, then slavery, then feudalism, capitalism and socialism. Right? These were the modes of production. Produce कैसे किया जा रहा है, whatever the goods and services are getting produced. Right? So first was the primary communism, when there was no concept of private property. Right? When we used to live in band societies, before forming families or villages or tribes, before forming various chiefdoms, then various fiefdoms, various kingdoms, various empires. Before all that, right, we were living in band societies, and we were, all the human species were in conflict. In fact ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भैया बहुत हम हंसी खुशी रह रहे थे. ह्यूमंस जो है वो हमेशा से एक बहुत वायलेंट जानवर रहा है. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम्स में हमने इतने जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल के वॉरफेयर देखे जिससे हमें पता चला, और उसको ऑब्जर्व किया, उसको नॉट जस्ट ऑब्जर्व किया लेकिन डॉक्यूमेंट किया, राइट? वहां से ही नहीं पता चला हमें कि दैट वी आर इनहेरेंटली वेरी वायलेंट एनिमल्स, राइट? जब जेन गुडॉल ने चिम्प्स को ऑब्जर्व किया तो वहां से जो है वो समझ आया उन्हें कि भैया चिम्प्स जो है वो हमारे मोस्ट क्लोज रिलेटिव है अगर हम डीएनए वाइज देखें तो, राइट? और चिम्प्स के वायलेंस को जब उन्होंने समझा, तब उन्होंने जो है वो थियरेटाइज किया यहाँ पर, एंड उनके फॉलोअर्स ने भी थियरेटाइज किया कि भैया इंसान भी इनहेरेंटली एक बहुत वायलेंट जानवर है, राइट? सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ प्राइमरी कम्युनिज्म वी वर शेयरिंग, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था. अब जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, या जब भी हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में पढ़ते हुए जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट? जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मार्क्स या मार्क्सिज्म इट इज मोर सेंटर्ड अराउंड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, राइट? सो जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसकी बात की जा रही है. सो प्राइमरी कम्युनिज्म के दौरान देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, right? But then eventually we, at that time, during the time of primary communism, we used to live in band societies, or rather we used to live in small tribes,
right? And there was no concept of private property, right? People were in conflict of certain zones of interest, definitely different bands and different tribes, but ऐसा नहीं था कि किसी का एक ओनरशिप था या कुछ कागजी कार्यवाही थी या कुछ डेफिनेटिव था, लड़ो और छीन लो दूसरे से, वो लड़ाइयाँ चल रही थी, राइट? बट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था. बट देन इवेंचुअली we developed families, we developed small villages, right? Then we developed eventually small villages बनने लगे, तो gradually large villages बनने लगे, उन villages पर रूल करने लगे कुछ लोग, राइट? इवेंचुअली जो है वो चीफडम्स डेवलप हो गए, चीफडम्स के बाद इवेंचुअली चीफडम के बाद जनपद डेवलप हुए, देन या फीफडम्स जिसे आप कह सकते हैं, फिर किंगडम्स डेवलप हुए, देन एम्पायर्स डेवलप हुए, राइट? एंड बाय द टाइम वी रीच टू द लेवल ऑफ, इनफैक्ट किंगडम्स के लेवल तक भी जब हम पहुंचे तो हमने इंसानों ने, स्पेशली द रूलिंग क्लास, दे यूज्ड देयर स्ट्रेंथ ओवर द means of production, right, or their strength over the economy to subjugate certain section of the population, और उनसे स्लेवरी करवाई उन्होंने, उनको अपना स्लेव बनाया, और अब स्लेव्स जो हैं वो उनके लिए सब काम करके दे रहे हैं, और जो मास्टर है उसकी जिम्मेदारी क्या है? स्लेव को पूरी तरह जिम्मेदारी भी नहीं है, स्लेव को जिंदा रखा जाए या ना रखा जाए, इट डजंट मैटर, बिकॉज स्लेव उनकी प्रॉपर्टी है. अब वो स्लेव को मारना चाहे तो मार सकते हैं, कोई लीगल एक्शन जो है वो उनके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता, राइट? लेकिन अगर अपनी मशीनरी को चालू रखना है, इकोनॉमिक मशीनरी को, तो स्लेव्स को मेयरली जिंदा रखना है बस आपको, राइट? तो स्लेवरी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्लेव्स एंड देयर ओनर्स, देन फ्यूडलिज्म, द प्लेस ऑफ स्लेव्स, देन इवेंचुअली फ्यूडलिज्म आता है, राइट? और स्लेव्स की जगह, क्योंकि फ्यूडलिज्म यानी कि लैंड जो है वो अब किसी एक फ्यूडल लॉर्ड के अंदर लैंड को रफली डिफाइन करने की कोशिश की गई, और उस लैंड पर वो जो स्लेव्स हैं वो लॉक हो गए नाउ, राइट? नाउ दे कैन नॉट लीव दैट लैंड एंड दे हैव टू वर्क फॉर देयर लॉर्ड्स इन दैट लैंड ओनली, एंड दे हैव टू प्रोवाइड एंड प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड. So that's serfdom. So I hope you guys have the basic understanding of all these concepts, because serfdom क्या है, kingdoms क्या है, right? feudalism का पूरा concept हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं. So feudalism, the place of the slave was taken by the farm labor, the serfs, right? And then during this time the relationship was between the feudal lords and their serf working in their manors, right? Then feudalism was eventually replaced by capitalism, and industrial revolution was the final nail in the coffin of feudalism. In fact ऐसा नहीं है, scratch that, ये स्टेटमेंट जो है वो कहना पूरी तरह सही नहीं है, बिकॉज थ्रू आउट हिस्टोरिकल जितने भी हमने इस तरह के चेंजेस होते हुए देखे हैं, उसके साथ कंटिन्यूटीज भी बनी रही हैं. यानी कि आज भी हंटिंग गैदरिंग चल रही है, आज भी स्लेवरी मौजूद है, अफ्रीका में स्लेवरी आज भी मौजूद है, राइट? यानी कि आज भी फ्यूडल सिस्टम के रेमेनेंट एलिमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं. स्पेशली आप इंडियन सोसाइटी में देखिए, इंडिया का अपने फ्लेवर वाला जो फ्यूडलिज्म, उसके एलिमेंट्स आज भी आपको नजर आएंगे, राइट? और जो कैपिटलिस्ट एंड वर्कर एंड लेबर का जो रिलेशनशिप है वो तो धीरे धीरे काफी ट्रांसफॉर्म हो गया, इवॉल्व नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, राइट? ऑल्दो यू कैन से दैट इट हैज इवॉल्व्ड एट सर्टेन डिग्रीज, लेकिन द बेसिक नेचर जो है वो वही है, राइट? ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर. नाउ नेक्स्ट मार्क्स कहते हैं कि फिर उसके बाद आएगा सोशलिज्म, क्योंकि अब फाइनली जो है वो वर्कर्स को समझ आएगा. मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट जो फिलोसोफर्स हैं, एंड इनफैक्ट मार्क्स ऑल्सो, दे बिलीव दैट कि भैया ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ड्यूरिंग दैट टाइम, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये इस पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस का नतीजा है, जो कि लेजिट है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है? एंड इस प्रेजेंट सिचुएशन पर आकर जो है वो अब समझ आया है, अब जाकर जो है वो प्रोलेटरेट को समझ आया है कि भैया हमें तो जो है वो प्रेस किया जा रहा है, और वी हैव, अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को क्लास कॉन्शियस, अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को क्लास कॉन्शियसनेस में अगर बदल दें, राइट, सो वी कैन गेट आउट ऑफ दिस चेन, ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि अब जाकर समझ आया, ये मुझे पूरी तरह हजम नहीं होता, बिकॉज एंशिएंट टाइम में स्लेव्स को पता ही था, राइट? स्लेव्स नो दैट दे आर स्लेव्स, राइट? बट कंसिक्वेंसेस का भी उन्हें पता था कि अगर वो
कुछ भी आवाज़ उठाएं किसी भी तरह की तो बहुत ब्रूटल उनको डेथ दी जाएगी। सेम वाज द केस ऑफ मिडिवल टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स हम कह सकते हैं कि ऐसे नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, कुछ और ऐसी घटनाएं घटी जिससे जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है उनके लिए वायबल ऑप्शंस जनरेट हो गए, सच एज द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल क्लास एंड all that went into it, all those events that resulted into the development of the middle class, right? Middle class provided the ideologies na, on the basis of those ideologies everyone came to know about such things, because medieval time में तो क्या बोले जा रहा था कि भाई डिवाइन राइट है एरिस्टोक्रेट्स का, तो है ना, वो तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट में इवेंचुअली जो मिडिल क्लास डेवलप हो उन्होंने बताया ना कि तो डिवाइन राइट नहीं है, तो बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारा, राइट? सो मेक श्योर प्रीवियस सेशंस आप देख लें तो यू विल बी एबल टू, हमेशा का मेरा डायलॉग है, बिकॉज अब लेट्स से दिस सेशन इज ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये सेशन अगर मैं यूट्यूब पर डालता हूँ और अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट आकर इस क्लास को देखे तो उनके बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंटिन्यूटी में पढ़कर आनी पड़ेंगी, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई भी एक रैंडम टॉपिक मैं उठाऊं, लाइक लेट्स से मार्क्सिज्म मैंने जो है वो आउट ऑफ द ब्लू उठा लिया और मैं एक क्लास में आपको पूरा मार्क्सिज्म जो है वो समझा दूं, राइट? एंड एट द सेम टाइम इस क्लास में भी आपको मैं पूरा मार्क्सिज्म नहीं समझा पा रहा हूं और समझा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स, बहुत लंबा सेशन है मार्क्सिज्म को समझना, बहुत बड़ा बैकग्राउंड लगता है, पहले बहुत बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, एंड उसका कुछ पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कवर करा दिया है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जितना रेलेवेंट है, मुझे लगता है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जितना रेलेवेंट है, बैकग्राउंड एज वेल एज दिस टुडे सेशन हम इसे डिस्कस कर लेंगे, राइट? सो यस, so Marx says that socialism, this was the future system when the worker would rule the system. बाहर निकल आएंगे वो, they will rebel, they will revolt, and workers will break the chain, right, of this, break the chain of oppression, and they will rule themselves, right? There will be a dictatorship of proletariats. He believed European society underwent a phase of change and metamorphosis through the above method. So चेंज और एवोल्यूशन आप कह सकते हैं, चेंज आप कह सकते हैं, इस प्रोसेस से जो यूरोपियन सोसाइटी गुजरी है, ठीक है, विच इज मोर और लेस, ठीक है, आप मान सकते हैं, ठीक है, दिस इज मोर और लेस फाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन इसी सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर में आपको मैं और समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, वापिस आएंगे इसमें जब हम एक बार डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझ लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नाउ। सब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, मार्क्स ने प्रॉब्लम समझा दी, ठीक है, मतलब मैंने प्रॉब्लम समझा दी आपको, जो कि मार्क्स ने मेंशन करी कि मार्क्स मतलब अकॉर्डिंग टू दी वर्क्स ऑफ मार्क्स, मैंने आपको उस समय के इंडस्ट्रियल वर्कर्स या जो प्रॉब्लम है द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, वो समझ आ गई आपको कि भैया सेल्फ एलियनेट हो जा रहा है, और दूसरी साइड एक पूरा प्रोसेस चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, ये कैपिटलिज्म की वजह से ही है, नहीं, ये जो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसी वाला, सॉरी, ऑप्रेसर्स और ऑप्रेस्ड वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। नाउ अब इसका सोल्यूशन क्या किया जाए? अब सोल्यूशन समझने के लिए एक बार और थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की थोड़ा सा टेक्निकलिटी में उतरते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों जो है वो जनरेट हुई, कैसे ये प्रॉब्लम जनरेट हुई, ठीक है। सो मार्क्स बोरोड द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिज्म फ्रॉम हीगल। सो डायलेक्टिक्स नहीं, डायलेक्टिक्स, जैसे ऐसे ऐसा कहां से निकला है वर्ड, ये डायलॉग से, राइट? दो व्यक्ति जो है वो वार्ता कर रहे हैं आपस में। इनफैक्ट प्लेटो ने ये कहानी शुरू करी थी कि अगर कोई भी, चलो थोड़ी देर में समझाता हूं प्लेटो ने क्या कहा। ऑल्दो अंडर एथिक्स प्लेटो जब कराऊंगा तो देयर विल गो इनटू दिस डिटेल, वहां पर हम थोड़ा मार्क्स के भी डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। नाउ हीगल वाज एन आइडियलिस्टिक थिंकर। हीगल का ज्यादा जो है वो फोकस किस पर था? आइडियाज पर। ही बिलीव्ड इन द प्राइमेसी ऑफ आइडियाज। अकॉर्डिंग टू हिम आइडियोलॉजिकल चेंजेस प्रिपेयर द वे फॉर द चेंजेस इन सोसाइटी। लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, राइट, दैट कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की कैपेसिटी है, हम आइडिया सोच सकते हैं, वो जो नए आइडियाज हम सोचते हैं उससे धीरे धीरे जो है वो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, राइट? कुछ ऐसा ही जो है वो हीगल का कहना था, और इनिशियली मार्क्स भी कुछ
ऐसा ही सोचते थे बिकॉज मार्क्स वॉज मेंबर ऑफ यंग हिगेलियंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मार्क्स वॉज मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इनिशियली when he moved to Berlin. But how would ideological changes take place? तो क्या फॉर्मूला दिया कि ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस आते कैसे हैं? तो शुरुआत हुई प्लेटो से, राइट, यहां समझा देता हूं आपको। शुरुआत होती है प्लेटो से। प्लेटो कहते हैं कि दो व्यक्ति आपस में वार्ता कर रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति पर्सन ए सेज समथिंग, राइट, कोई भी एक आइडिया जो है पर्सन ए लेकर आता है, पर्सन ए का आइडिया 1, राइट, एंड पर्सन बी का एक काउंटर आइडिया होता है आइडिया 2। तो इनके बीच में जो डायलॉग चल रहा है ना, इस डायलॉग से इवेंचुअली दे विल कम टू अ सॉल्यूशन, राइट। कुछ ऐसी बात जो है वो प्लाटो ने कही आइडियाज के सेंस में। सो प्लाटो, एरिस्टोटल, up to the level of Hegel, they were all talking about they were all focusing, or for them there was primacy of idea, right? तो हेगल क्या कह रहे हैं कि भैया वही सेम बात कि अगर एक साइड एक थीसिस है, राइट, वो आइडिया 1 की जगह हमने वर्ड रख दिया, टेक्निकल वर्ड रख दिया थीसिस, ठीक है, और दूसरी साइड से उसका एक काउंटर पॉइंट है, उसकी एक एंटी थीसिस आती है, राइट। यहां पर हेगल ने वर्ड बीइंग एंड नॉट बीइंग भी यूज किया है, बीइंग एंड नॉट बीइंग। सो अगर एक साइड एक थीसिस है, एक कोई आइडिया है नया, राइट, और दूसरी साइड से एक एंटी थीसिस आती है, यानी उसका काउंटर आइडिया आता है, दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन होगा, राइट। लेकिन इफ दे आर विलिंग टू सॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इवेंचुअली दे वुड कम टू अ solution, right? And that solution, that change, with as the result of contradictions, as the result of this conflict, is the synthesis, right, or becoming. Now synthesis एक नया आइडिया है, राइट, सिंथेसिस में भी तो थीसिस वाला पार्ट है ना। अब इस थीसिस के लिए भी कोई एंटीथीसिस आ जाएगी, right? So we can understand this in this manner. So first there is a thesis, right? उसके against में there is a antithesis. There is contradiction between them. Solution निकाला, क्या बना? एक, there is a thesis, there is a antithesis, solution निकला एक synthesis, right? अब ये सिंथेसिस भी जो है वो एक थीसिस के रूप में डेवलप होगा, क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी थीसिस आ जाएगी, राइट। अब इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन से भी एक सॉल्यूशन निकलेगा, सिंथेसिस। अब इस सिंथेसिस के अगेंस्ट भी एक एंटीथीसिस आ जाएगा, इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन से एक और जो है वो सिंथेसिस निकलेगा, राइट, एंड देन वन मोर, एंड देन वन मोर, and so on, right? This is the historical progression. This is how history has progressed. And Hegel यहां पर ये कहते हैं कि thesis and antithesis are ideas। कह रहे हैं कि भैया ideas जो है वो, जो भी नए ideas हमने डेवलप करे, ठीक है, उनकी वजह से ये सिंथेसिस या नया चेंज आया, कोई भी सोशल चेंज, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, आइडियाज की वजह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, राइट। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि नहीं, शुरू में मार्क्स भी ये मान रहे थे आइडियाज की सुप्रीमेसी, लेकिन धीरे धीरे मार्क्स को समझ आएगा कि नहीं, आइडियाज अकेले जो है वो नहीं कामयाब नहीं, राइट। इट इज द मटेरियलिज्म, नॉट मटेरियलिज्म इन दैट सेंस कि वी आर लविंग, क्रेविंग एंड वी एंजॉयिंग द मटेरियल थिंग्स, नहीं, नॉट दैट, राइट। इट्स द materialistic, like for example it's the economic changes, it's the solid relationship, economic relationship between society, that type of materialism, right? It is materialism जो कि basis है, right, जो कि क्या है, एक thesis है, यानी कि एक तरह का अगर economic system है, उसके against, उसके counter में दूसरा जब economic system आएगा, right, तो जो है वो एक synthesis generate होगा, एक synthesis generate होगा, ठीक है। So
सेम गोज फॉर, अगर एक साइड रिलीजन है, एक साइड अगर स्पिरिचुअलिटी आ गई, तो सिंथेसिस हो गया, हो सकता है आर्ट बन जाए उससे, या फिलॉसफी बन जाए उससे, राइट। रिलीजन और आर्ट के जुड़ने से कोई और सिंथेसिस डेवलप हो जाए, फिर जो भी नया, लाइक लेट्स से रिलीजन और आर्ट के जुड़ने से फिलॉसफी डेवलप हो गई, राइट। या रिलीजन और नेचुरल साइंस के जुड़ने से फिलॉसफी डेवलप हो गई, राइट। अब फिलॉसफी के साथ जो है वो आर्ट अगर जुड़ जाती है तो लेट्स से म्यूजिक जो है डेवलप हो जाता है, so on and so forth. Now I'm not saying that these are accurate examples, I'm just giving you an understanding of how different ideas, right, can contradict with each other and result into something new, right. So that is dialectical idealism. लेकिन अगर उसमें मटीरियल आप इन्वॉल्व कर देते तो दैट बिकम्स डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, जो कि मार्क्स ने कहा. So Marx was inspired by the theory of dialecticism but rejected the primacy of idea. He applied it to the material conditions. He expressed it in context of theory of class struggle and changed it as follows. जो class struggle अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, the class struggle between master and slave, the class struggle between feudal lord and their serfs, the class struggle between capitalist and the labor, right. So on the basis of this material condition, he explained या he proposed the theory of dialectical materialism. तो क्या कहा मार्क्स ने, देखिए. So this was the initially proposed theory that कि एक थीसिस है, एक एंटीथीसिस आएगी, सिंथेसिस बन जाएगा, फिर एक और नई एंटीथीसिस आएगी, नया सिंथेसिस हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट. बट मार्क्स ने क्या कहा कि भैया पहले पेट्रिशियंस थे, पेट्रिशियंस वर द मास्टर्स एंड प्लेबियंस, प्लेब्स वर द आम जनता एंड स्लेव्स, राइट. देन इवेंचुअली क्या नया डेवलपमेंट हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स डेवलप हुए. अब आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स फ्यूडल लॉर्ड्स कैसे डेवलप हुए, बट लेट मी गिव यू जस्ट अ ब्रीफ. चलो एक और इमेज है मेरे पास, वहां से समझा देता हूँ. फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देन मेनोरियल सिस्टम एंड देन बुर्जुआ कैपिटल या बुर्जुसी कैपिटल एंड देन प्रोलेटेरियन वर्कर्स एंड फाइनली रेवोल्यूशन दैट रिजल्ट्स इनटू कम्युनिज्म. तो समथिंग लाइक दिस जो है वो मार्क्स ने समझाने की कोशिश करी. एक नेक्स्ट इमेज से आपको रादर थोड़ा बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है. इसमें देखिए, सो दिस इज द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स. So initially the dialectics, the conflict was between unorganized society and the organized, initial organized society. जब प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्राइबल्स डेवलप किए हमने, यानी कि चीफ डम्स वाला जो एग्जांपल जब मैंने आपको दिया. सो इनिशियल बैंड सोसाइटीज में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऑल ओवर पूरी दुनिया में चीफ डम्स अचानक से एक साथ डेवलप हो गए होंगे, राइट. कुछ बैंड सोसाइटीज होंगी, लेकिन कुछ लोग जो है वो सेटल्ड लाइफ एस्टेब्लिश कर लिए होंगे, उन्होंने विलेजेस एस्टेब्लिश कर लिए होंगे, कुछ हंटर गैदरर्स होंगे, नोमैडिक्स. इनिशियली उनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, राइट. या ट्राइब्स के बीच में, लाइक हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ट्राइब्स के बीच में या इनिशियल जो स्टेट्स हैं, जो जनपद हैं, उनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहा और धीरे धीरे उन ट्राइब्स को एसिमिलेट किया गया, राइट. सो इनिशियली देयर वाज अ एरा ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड द एंटीथीसिस, और जो चेंज आ रहा था वो था, चेंज क्या था कि भैया नया फॉर्म ऑफ, मतलब सेटल्ड लाइफ एस्टेब्लिश की जाए, चीफ डम्स किंगडम्स एस्टेब्लिश की जाए. दैट रिजल्टेड इनटू, सॉल्यूशन वाज क्रिएशन ऑफ एम्पायर्स. क्यों? क्योंकि एम्पायर्स वुड हैव नाउ लार्जर बाउंड्रीज, मोर उनके पास रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा वो टैक्स जो है वो लवाई कर सकते हैं, ज्यादा आर्मीज जो है वो डिसबैंड कर सकते हैं. तो इनिशियल एम्पायर्स जो, इनफैक्ट स्टैंडिंग आर्मीज जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो इनिशियल एम्पायर्स जो है वो डेवलप हुए. इंडिया में मौर्यन एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर, राइट. चाइनीज वेरियस डायनेस्टीज जो है वो डेवलप हुई. उसके अलावा इजिप्ट में रोमन्स, एम्पायर्स डेवलप हुए. देन दीज एम्पायर्स नाउ दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द बारबेरियंस, राइट. अब एम्पायर्स को जो रूलर है, जो मोनार्क्स हैं, उनके कंट्रोल में था पूरा, लेकिन बहुत बड़े बड़े एम्पायर बन गए. मैंने आपको समझाया है कि ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बड़े एम्पायर वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, राइट. एंड दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद बारबेरियंस. अगर हम रोमन्स की ही बात करें तो द केल्ट्स एंड द गाउल्स एंड द सिथियंस, ऑल्दो सिथियंस वर नॉट एज बारबेरिक, they were not barbaric, they had their own proper systems,
Nevertheless, Romans came into conflict with such barbarians. सेम हम कह सकते हैं कि इंडियन रूलर्स दे आल्सो केम विद कॉन्फ्लिक्ट विद मेनी बारबेरियंस, अगर हम कहें जो प्रिमिटिव ट्राइबल सिस्टम में लोग रह रहे हैं, राइट या अगर आप थोड़ा सा वैदिक हिस्ट्री को पढ़ें तो वैदिक लोग जब भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे अलॉन्ग द फुटहिल्स, दे केम इन कांटेक्ट विद द मलेच, दे कॉल्ड देम मलेच, बारबेरियंस को उन्होंने मलेच कहा, राइट। सो बारबेरियंस के जब कॉन्फ्लिक्ट में वो आए, सो दिस वाज द थीसिस, ये यहाँ इस केस में थीसिस है, ये एंटीथीसिस है। सो नाउ दे वांटेड बट कि भैया थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हो, लैंड जो है वो अपने पास मतलब ऐसा ना हो कि लाइक पाटलिपुत्र में कैपिटल है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है और पटना से आर्मी पहुंचने में जो है वो 3 महीने लग गए और तब तक तो लूट लिया वो एरिया। नहीं, वहां पर जो है वो गवर्नरशिप होनी चाहिए, राइट यानी कि वहां पर किसी अपने बंदे को बिठाना पड़ेगा, उसको लैंड देना पड़ेगा ताकि वो अपनी इनकम वहां से जनरेट करे और हमारे नाम पर वहां पर रूल करे। तो दैट डेवलप्ड द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, राइट। द सॉल्यूशन वाज द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। इससे हुआ क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो एम्पायर्स टूट गए। सो दैट वाज अ थीसिस। लेकिन इवेंचुअली ये हम केवल यूरोप की कहानी, इंडिया के तो मैं आपको बीच बीच में एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आप यूरोप के साथ कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर ये पूरी टाइमलाइन कनेक्ट होगी, राइट। सो नाउ व्हाट, यूरोप में अराउंड 1200 1300 1400 1500 तक आते आते वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो है वो रूल कर रही है। लेकिन अचानक से द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द सर्च ऑफ द न्यू वर्ल्ड शुरू हो जाता है, राइट। देन विद द एडवेंट ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेनेसांस, देन एज ऑफ एनलाइटनमेंट, देयर इज अ डेवलपमेंट और देयर इज इवेंचुअली एक डेवलपमेंट होता है किसका, एक बुर्जुआ क्लास का या एक अपर मिडिल क्लास का। एंड नाउ दिस अपर मिडिल क्लास कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द एरिस्टोक्रेसी, राइट। that resulted into what, resulted into one or many in fact bourgeois democracies। और अगर हम ब्रिटेन में बात, bourgeois democracy basically that they will get some rights, they will get seats in the parliaments, they will get democratically elected, or their representatives would get democratically elected because franchise was limited at that time, quite limited in fact initially। so that was the bourgeois या bourgeois democracy, right। and those bourgeois democracy, they had the representatives in the governing bodies and they said कि भैया सरकार दूर रहो, हमको ट्रेड करने दो, राइट हमको इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने दो, हमको कैपिटलिस्ट, हमको अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने दो जो हमने ट्रेड से बटोरा है, और हमें लेबर को एक्सप्लॉइट करने दो, राइट। दैट रिजल्टेड इनटू, सो दिस वाज द एंटी थीसिस एंड देन इट बिकम अ सिंथेसिस और अ न्यू थीसिस, राइट। उसके अगेंस्ट में एंटी थीसिस आती है फिर प्रोलेटरेट्स की। अब प्रोलेटरेट्स जो है वो धीरे धीरे उनकी कॉन्शियसनेस जागती है, राइट। जो मिडिल क्लास है वो उन्हें भी बताता है कि भैया दीज आर योर प्रॉब्लम्स, और वो खुद से भी थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो एक नई एंटीथेसिस आती है, एक नया टसल शुरू होता है बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर्स, राइट। एंड दैट कुड रिजल्ट इनटू प्रोलेटरेट, that will finally result into a communistic utopia. The final result would be a communistic utopia, right? So that is how Marx explained what would happen next, right, in the capitalist nations especially। but क्या ऐसा हुआ, क्या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में बनी, सच एज सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश हुई, या कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुआ वहां इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में? नहीं, राइट। कम्युनिज्म ऐसी जगह डेवलप हुआ जो कि देश सेमाई इंडस्ट्रियलाइज था, रशिया, राइट, और चाइना फॉर दैट मैटर। तो ऐसा क्यों, ये फेलियर क्यों? अगर ये फेलियर है मार्क्स का या मार्क्सिज्म का या कम्युनिज्म का, तो क्या कुछ सक्सेसेस भी हैं इंडस्ट्रियल नेशन में? क्या कुछ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, राइट, क्या इनमें कुछ चेंजेस आए या वैसा ही रिलेशनशिप रहा कैपिटलिस्ट एंड लेबर का? क्या उन्होंने कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट।
So that was the historical materialism of Marx. Then next is the materialistic interpretation of history. So this is that materialistic interpretation of history जो मैंने अभी आपको समझाया. Now Marx read these statements. Marx tried to interpret the developments in the history on the basis of theory of class struggle. So Marx said कि भैया throughout history there was a class struggle, there was always a class conflict. Initially it was किसके बीच में था? The kingdoms and the nomadics, right? Then the empires and the barbarians in Europe especially, right? Roman Empire and the Celts and the Gauls, right? Then it is the lords, right? Lords के बीच में और bourgeois के बीच में, and then it is between bourgeois and the proletariat. Now before Marx, the thinkers of 18th century tried to establish the history as an intellectually determined process, but Marx linked the change in the history with the changes in the material condition, right? Not the ideas. It is not the ideas of some person or people or group of people that resulted into changes in the society, but due to these very core material conditions according to Marx, right? These conflicts between different classes, their different socio-economic statures, right? The material condition being their different socio-economic statures of different classes. Now according to Marx, the changes in the basic structure results into the change in the superstructure of the dialectism. For example, agricultural surplus created scope for the socio-political changes. Now for most of you guys जिन्होंने मार्क्स पहले नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ये थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजरा होगा, right? So according to Marx, the changes in the basic structure results in the changes. Read this statement. According to Marx, the changes in the basic structure results into changes in superstructure of the dialectism. क्या मतलब इस बात का? आइए एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी कहानी समझाते हैं, right? So Marx says that there is a basic structure, there is a base, and then there is a superstructure, right? Now this is how मार्क्सिस्ट जो है वो मेटेरियलिस्टिक मतलब इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री का, और पहले वाले लोगों का आइडियलिस्टिक था, ठीक है? मटेरियल, द बेस पे क्या है? मटेरियल्स है, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन है. यहां पर है मोड ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किसके बेसिस पर प्रोडक्शन हो रहा है? इन द इंडस्ट्रियल टाइम प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल के बेसिस पर, टूल्स के बेसिस पर, मशीन्स के बेसिस पर, राइट? बेस में क्या है? टूल्स हैं, मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, लैंड है, रॉ मटेरियल्स हैं, राइट? दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. पहले क्या रहे हैं? पहले भी टूल्स रहे हैं, लेकिन स्लेव्स ने भी काम किया है या सर्फ्स ने भी काम किया है, ठीक है? दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सो बेस में क्या है? दो चीजें हैं. फर्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. रिलेशन किस किस के बीच में? द कैपिटलिस्ट एंड द प्रोलेटरेट, right? The feudal lords and the serfs, the masters and the slaves, the dominus and the slaves, right? Domina or dominus. ये डोमिना वर्ड से मडाम या मैम वर्ड जो है वो निकला है, राइट? सो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटल, कमोडिटीज एटसेट्रा, these are at the base. Right? These are the material things, and these material things, they shape the ideology, they shape the superstructure. Material things जो है वो आइडिया को क्रिएट करती है, ना कि आइडिया से मटेरियल थिंग्स क्रिएट होती हैं इनिशियली, राइट? बट इवेंचुअली ये एक लूप में आ जाएंगे. सो आइडिया सच एज वट एवर द इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हमने डेवलप करी हैं, राइट? वी हैव डेवलप्ड, लेट्स से फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, हमने पॉलिटी डेवलप करी, हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स डेवलप करे, हमने आर्ट डेवलप किया, हमने मीडिया, एजुकेशन, फिलॉसफी, रिलीजन, मेडिसिन, वॉरफेयर, राइट? या वॉरफेयर एज अ पूरा इंडस्ट्री जो डेवलप करी हमने,
So all these are ideologies, they are superstructure. So at the base, जो बेस है यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो जिस रिलेशनशिप में प्रोड्यूस करवाया जा रहा है उनसे, और जो चीजें यूज की जा रही हैं, those are at the base. they shape the ideology, right? यानी कि जिस तरह का प्रोडक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल लेबर कैपिटलिस्ट, अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होगा सॉरी, तो उसी तरह की आइडियोलॉजी होगी, राइट? लोग जो है वो उसी तरह लेबर को क्या समझेंगे? सब ह्यूमन समझेंगे, राइट? या स्लेव को सब ह्यूमन समझेंगे, या सर्फ को सब ह्यूमन समझेंगे। उसी तरह का लॉ होगा, यानी वही लोग जो कैपिटलिस्ट हैं वही लॉबी करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वही लोग लॉ बनाएंगे किसके फेवर में? कैपिटलिस्ट के फेवर में। वैसा ही मीडिया होगा, वही एजुकेशन दी जाएगी, राइट? वही यूरोसेंट्रिक एजुकेशन दी जाएगी, दैट वी आर सुपीरियर एंड द ओरिएंटल्स आर सब ह्यूमंस। वैसा ही रिलीजन काम करेगा, राइट? दैट रिलीजन दे विल प्रोवाइड डिवाइन राइट ऑफ रूलिंग to the aristocrats or the landed aristocracy, right? वैसा ही फैमिली स्ट्रक्चर होगा। सो ये जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट और दे आर शेप्ड बाय द बेस और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, राइट? बट once they have been established, then again they maintains the base. So base shapes the superstructure maintains the base. अब जो elites हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, राइट, वो तो चाहेंगे ना जो सिस्टम चल रहा है जो चलता रहे, क्योंकि उनसे उन्हें बेनिफिट है, राइट? जो लॉ सिस्टम है, जो लॉ बनाने वाली अथॉरिटीज है, वो तो चाहेंगी ऑफ दैट टाइम ऑफ ब्रिटेन और फॉर दैट मैटर यूरोप, रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरोप और इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप, वो तो चाहेंगे कि यही लॉज बने रहे जिनसे हम खुलकर जो है वो लेबर को एक्सप्लॉइट करें, right? So they will maintain, and not just laws, but they will maintain कि भैया उसी तरह की टूल्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, वैसे ही लैंड एक्वायर किया जाए और वही रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रखा जाए, right? They will not allow the lower ranks to sit with them, right? Like for example in the home of, अगर हम 19वीं सेंचुरी में किसी बुर्जुआ, किसी अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में जाएं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में जाएं, तो उनके सर्वेंट्स उन्हें सर्व तो करेंगे, लेकिन कभी भी उनके प्रेजेंस में जो है वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करेंगे जो उनके मालिक हैं, राइट? उनको बोला जाएगा कमरा छोड़कर चले जाओ। कभी भी उनके साथ नहीं बैठकर खाएंगे, अलग बिठाकर उनको, इनफैक्ट सेम रूम में नहीं खाएंगे, अलग रूम में उनको बिठाकर खिलाया जाएगा। उनके लिए प्रॉपर अलग जो है वो पेंट्रीज होंगी, उनके लिए प्रॉपर अलग जो है वो डाइनिंग स्फीयर्स होंगे, और उनके क्वार्टर्स बेसिकली अलग होंगे, राइट? सो डिस्टेंस जो है वो बनाए रखा जाएगा। सो द सुपर स्ट्रक्चर इट मेंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर, इट शेप्स द सुपर स्ट्रक्चर, एंड दिस लूप गोज ऑन एंड ऑन। सो ये लूप जो है वो हिस्ट्री में चला आ रहा है, इस तरह थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो ये लूप चलता आ रहा है, राइट? दिस इज व्हाट जो है वो मार्क्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, right? So for example, agricultural surplus created scope for socio-political changes, such as agricultural surplus आया तो जैसे हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस आया तो किंग्स की पोजीशन जो है वो मजबूत हो गई। अब किंग्स की पोजीशन जो है वो मजबूत हो गई तो उन्होंने कोशिश क्या करी कि एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो बना रहे, राइट? सो इस तरह का इकोनॉमिक चेंज आया। सो इकोनॉमिक चेंजेस, सो मैंने आपको बहुत पहले समझाया ना ये, दैट इकोनॉमिक चेंजेस दैट डेराइव इन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक चेंजेस डेराइव सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड एवरी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, राइट? सो दी इट इज द मटेरियल जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज करते हैं किसको? आइडियाज को, ठीक है? जबकि हीगल जो है उसका एक बिल्कुल उल्टा कह रहे थे कि आइडियाज शेप कर रहे हैं मटेरियल को, नहीं, मटेरियल शेप कर रहा है आइडिया को, राइट? आई होप आपको ये इतना ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इफ नॉट, आप मुझे मैसेज कीजिए, ड्रॉप कीजिए टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, जहां पर भी आप कनेक्टेड है मेरे साथ,
I will try to explain it again, right? Or at least I'll suggest some reading material to you जिसमें थोड़ा आसान लैंग्वेज में थोड़ा और एलोबरेशन में समझाया हो, from there you can access, right? थोड़ा और पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में. Although as far as history optional is concerned, इतना ही अगर आपको समझ में आता है that is sufficient. It is sufficient to write our answers. हमें अपने आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे इन्हीं पॉइंट्स में से, ठीक है? चाहे किसी भी तरह का सवाल जो है वो यूपीएससी हमारे सामने डाले, अभी तक जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है हम हर सवाल को टैकल करने की क्षमता रखते हैं. ऑलराइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ अब हमें क्या समझ आ गया? अब हमें मार्क्स ने समझा दी है प्रॉब्लम, ठीक है, राइट? और अब हमें जो है वो मार्क्स बताएगा कि सोल्यूशन क्या है, अब करना क्या है इस प्रॉब्लम का, ठीक है? प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दिया कि ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप कैसे हुई है, सेल्फ एलियनेशन हो कैसे गया ये, राइट? ये क्लास स्ट्रगल है क्या, और ये हिस्टोरिकली जो चलता आया है, ये जो है वो पूरी तरह हमें जो है वो मार्क्स ने समझा दिया, ठीक है? अब आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम मार्क्स, आई एम फार फ्रॉम मार्क्स, इनफैक्ट बहुत बहुत फार, इनफैक्ट आई एम अ कैपिटलिस्ट, राइट? आई एम इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म. Now, moving forward. No, not exactly capitalism, but let's say a mixed economy. I'm more in a favor of mixed economy, right? With somewhat lingering towards capitalism. ऐसा क्यों है? We will try to understand this after, कब समझ पाएंगे अब हम? जब कोल्ड वॉर खत्म होगा ना, जब हम 1990s तक पहुंचेंगे, तब इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. And that is not far. Only hardly 10, 12 or 15 sessions are left in world history. 15 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ. I'll try to cover it in 12 sessions. ठीक है? Now because after this only one session क्या रहा है, अब इसके बाद हमें colonialism and imperialism एक बार समझना है, ठीक है? Then we'll enter into world wars. फिर हम वर्ल्ड वॉर 1, इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर 2, दो सेशन तीनों के, ठीक है? 6 क्लासेस ये हो गई. 7वीं क्लास colonialism, imperialism, and then we'll enter into post World War II condition and hardly 4-5 sessions in that, ठीक है? और फिर कुछ, हाँ, इस तरह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक हमारा. ऑलराइट, मार्क्सियन रेवोल्यूशन. सो मार्क्स टॉक्स अबाउट 3 stages in revolution. अब ये जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन दी बुर्जुआ, राइट, बुर्जुआसी और बुर्जुआसी एंड दी प्रोलेटरेट, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? 3 स्टेजेस में करेंगे. पहला क्या है? द स्टेज ऑफ डायरेक्ट एक्शन. नाउ वर्कर्स को दे विल हैव टू यूनाइट, राइट? दे विल हैव टू अलाइन देयर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द कॉन्शियसनेस ऑफ देयर क्लास. They have to develop a class consciousness, right? And then they will have to seize the power from their oppressors directly. So with a direct action during this stage, the working class should seize the power. It would be a bloody revolution. That means he is calling for violence. Violence की बात कर रहा है कि violence से छीना जाएगा, क्योंकि आपसे बहुत violently हमें नजर नहीं आ रहा है. इनफैक्ट नजर भी आ रहा था उस समय, आज हमें नजर नहीं आता ना, लेकिन उस समय तो सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थी लोगों की, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की. सो छीना गया है जिस तरह आपसे, आपके जीवन को एलियनेट किया गया है, आपको वैसे ही पावर को वापस छीनना है, राइट? सेकेंड इज डिक्टेटरशिप ऑफ, देन आप एक बार पावर जब छीन लेंगे तो फिर आप एस्टेब्लिश करेंगे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास, राइट? तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसे ही आप यूज करेंगे, राइट? द वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास विल एस्टेब्लिश इट्स ओन डिक्टेटरशिप. और ये कैसे होगा? यूज द स्टेट मशीनरी टू डिस्ट्रॉय द बुर्जुआ क्लास इन द सेम मैनर एज द बुर्जुआ क्लास हैड एक्सप्लॉइटेड द सेम स्टेट मशीनरी टू ऑप्रेस द वर्कर्स. नाउ मार्क्स ने कहा कि भैया जो स्टेट मशीनरी है वो एक डिवाइस है एक्सप्लॉइटेशन का, और कुछ नहीं है, राइट? पूरा का पूरा जो स्टेट मशीनरी है वो एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए ही बना है. किसका? प्रोलेटरेट का, द वर्किंग क्लास का और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको और बुर्जुआ क्या कर रहे हैं? बुर्जुआ लॉबी कर रहे हैं उन गवर्नमेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को, राइट? उनको ब्राइब दे रहे हैं या खुद बैठे हैं कुछ तो, या तो उनको लॉबी करके बिठाए हुए उन्होंने, राइट? और वो उनके फेवर में ही, तो ये
उनके फेवर में ही लेजिस्लेट कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो काल चक्र है, इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है? राइट, पहले उन सभी बुर्जुआ को हटाओ पावर से वायलेंटली। अब ये कैसे होगा? मार्क्स क्या कह रहे हैं? बहुत डिटेल में उन्होंने बताया क्या क्या किया जा सकता है। उनकी फैक्ट्रियाँ जलाई जा सकती हैं, उनके घरों में आग लगाया जा सकती है, उनके ऑफिस में उनके सारे दस्तावेजों को जलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तो सब कुछ लिख कर हो रहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तो था नहीं, कागजों पर था सब कुछ। तो आप सब कुछ फूक दो। ठीक है, अब क्या पता चलेगा किसके पास क्या है? अब जब सारे कागज ही आप जला दोगे तो फिर आप प्रूव कैसे करोगे कि किसका क्या था? राइट। सो देन जब आप ऐसा कर लें तो फिर आप ही उस स्टेट मशीनरी में खुद को एम्प्लॉय करें, एस्टेब्लिश करें, और अब जो है वो आप प्रोलेटरेट की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, आफ्टर this the proletariat class should export the revolution to the other regions. So in every region the revolution could take place and establish proletariat dictatorship. So एक अकेले देश से नहीं होगा ना, बाकी आसपास के सभी देश, नहीं तो क्या होगा, बाकी आसपास के देश जो है वो टूट पड़ेंगे, जैसे जर्मनी पर टूट पड़ा था फ्रांस, राइट, या फिर देन इवेंचुअली फ्रांस पर टूट पड़े थे सभी। तो आसपास भी आपको डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि सभी जो है वो एटलीस्ट इन अ रीजन सभी लोग जो है वो सिमिलर, या सभी स्टेट्स जो है वो सिमिलर पॉलिटिकल फिलॉसफी पर चलें। ठीक है, थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। एज द पर्पस ऑफ द स्टेट वुड बी ओवर, द होल वर्ल्ड विल हैव अ सिंगल स्टेट एंड अ सिंगल क्लास, दैट इज प्रोलेटरेट क्लास। एंड दिस सिंगल स्टेट, अ सिंगल क्लास, जो एक क्लासलेस सोसाइटी, एक स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो इवेंचुअली डेवलप हो जाएगी, एंड दैट विल बी द स्टेट ऑफ यूटोपिया, दैट विल बी द स्टेट ऑफ कम्युनिज्म। राइट, सो द अल्टीमेट गोल इज टू रीच टू द लेवल ऑफ कम्युनिज्म, एंड फॉर दैट ये 3 स्टेप जो है वो तरीका बताया। ये क्या है? बेसिकली एक ब्लडी रेवोल्यूशन है। विल डिस्कस दिस अगेन जब हम लेनिन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा मैं आपको लेनिन समझाऊंगा। देयर आई विल एक्सप्लेन दिस अक्टूबर मार्च रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देयर आई विल एक्सप्लेन दीज 3 स्टेप्स अगेन, कि क्या इन 3 मार्क्स के द्वारा तो बताए गए इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया गया या नहीं। ऑलराइट, what is next? Next is the evaluation of the impact of Marxism on Europe. Now this is we'll discuss in the next session, right? In the next session again ये हम डिस्कस करेंगे इवेल्युएशन, बिकॉज वी नीड टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आल्सो, 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? सो दैट इज ऑल इन फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस आप जरूर देख लें, मेक श्योर कि आगे आने वाले सेशंस के साथ आप जरूर जुड़े, और जो बुक रीडिंग सजेस्ट करी है मैंने उसे भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ट्राई टू राइट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।